निकाल लिया ना। Okay. I hope my audio is my voice is audible to everyone. Yes, sir. Okay. And the screen is also visible to everyone. So today I'll start the Industrial Engineering Management lecture number 25, date 23. That is quality management. Okay. That is quality control. Okay. So before going to start the quality control, okay, I have to know what do you mean by quality. अगर मुझे क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं होगा, then how I will control. So what do you mean by quality? So can anyone describe what is the meaning of quality? Anyone? So quality is the measure that how efficient the product is. How efficient? Okay. So actually quality efficiency को measure नहीं करता है, ठीक है? Efficiency को measure नहीं करता है. तो अगर efficiency को measure करता quality, तो always there will be a good quality product. Bad quality वाला कोई term होता ही नहीं, ठीक है? Quality is nothing but the attribute, ठीक है, or properties which describe the product. Simple. No efficiency, no extra technical terms. That is attributes or properties that describe the products. ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ recording on किया हूँ कि नहीं. Okay, so whenever you are going to define quality, that means it is the attributes or properties that describe the product. ये पॉजिटिव एक्सिस पे भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. सपोज तुम लोगों का क्वालिटी क्या है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग 6th semester? So obviously that will vary from different students to students, कि सभी का क्वालिटी सेम नहीं होगा, ठीक है. So now the properties or the attributes that describe the product, if I will say that describe the quality of the 6th semester student of EEE branch, then what will be the happen? Each and every student's individual quality will be added. Okay, so to describe the entire quality of the 6th semester EEE branch students. Okay, so if more than one numbers are there, then the quality can be defined as summation of attributes or properties that describe the product.
ठीक है. So अगर more than one products are there, like more than one students in the class, so if I will say what is the quality of the class, so obviously different students have different qualities. So overall quality of the class will be the summation of attributes or properties that describe the product, that describe the overall summation. So overall summation of the each and properties of each and every students of the class will be quality. ठीक है, that is quality, not quality control. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वालिटी का डेफिनेशन. क्वालिटी. Okay, now why we have to control the quality? Why? एक क्वालिटी तो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है. सो नाउ व्हाई कंट्रोल इज देयर? क्वालिटी को कंट्रोल क्यों करते हैं? व्हाई? उसका जरूरत क्या है? एनीवन, क्वालिटी को हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं? Why we have to control the quality? Anyone from your end? क्वालिटी तो है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. नाउ व्हाई वी हैव टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट? जरूरत क्या है? सर. हाँ बोलो. सर, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड efficiency. Increase the productivity and efficiency, that is Yes. increasing productivity and efficiency. Anyone? Any other points? So maintaining the property at a higher level. Maintain the Property or efficiency of any product. same thing. Efficiency, increasing or maintaining. ठीक है. Any other? Sir. हाँ. Sir, maintain their production control. हाँ. Maintain, that is production, increasing productivity, same thing. तो increasing कर रहा है या maintaining कर रहा है, same thing. So instead of increasing, I am writing productivity. Okay. Next is, और एक चीज है reliability. और एक इक्वालिटी. दूसरा है मॉडिफिकेशन. ओके. चौथा है प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे होगा कस्टमर satisfaction. So these are the reason why we have to control. Suppose तुम लोग मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट योर फ्रेंड्स हैज टू बाय. Obviously after buying that product, you are satisfied, so that you give the feedback to your friend, so that your friend will convince to buy that product. ठीक है. So now whenever your friend will buy the same product, so company will assure that whatever you have bought is equivalent to the same product, same model, has the same specification, also same model has the same quality, which will be bought by your friend. ठीक है. कि मैं एक सामान खरीदा, सपोज मैं एक लैपटॉप खरीदा हूँ, ठीक है, तो तुम एक लैपटॉप खरीदो, तो तुम जो लैपटॉप खरीदो, सपोज आई लाइक दैट प्रोडक्ट, मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो कंफर्टेबल है, हैंडी है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग भी ठीक ठाक है, उसका प्रोसेसर ठीक ठाक है, तुम्हारा मेमोरी ठीक ठाक है. सो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तुम अपना मॉडल का नंबर दे दो, मैं ये मॉडल खरीदूंगा. सो कंपनी, जिस कंपनी का लैपटॉप तुम यूज कर रहे हो, कंपनी विल एश्योर मी दैट कि तुम जो मॉडल खरीदे हो, ठीक है, वो मॉडल मैं जब खरीदने जाऊंगा,
तो वही मॉडल में मुझे सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगा जो तुम्हारे पास है, दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, सेम मॉडल हैज द सेम क्वालिटी, a same type of product has the same properties, like तुम लोग अभी 6M में हो, so कुछ क्वालिटी जो है वो अगर क्लास के रेस्पेक्ट में अगर देखूंगा तो मैं 3-4 क्वालिटी बोलूंगा, जो 3-4 क्वालिटी तुम लोगों में सब में कॉमन है, दैट इज सब 6M में पढ़ रहे हो, दैट इज कॉमन टू ऑल। सबको ये जो टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है सबका बैकग्राउंड साइंस है। ओके, नेक्स्ट all will get diploma after the completion of the course, that is you will be a diploma engineer। ये हो गया इक्वालिटी मेंटेन हो रहा। नाउ प्रोडक्टिविटी, सो क्वालिटी अगर मेरा मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, सपोज तुम इफ कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड बॉट सम चॉकलेट्स। ठीक है, चॉकलेट का क्वालिटी तुमको अच्छा लगा, ठीक है, तो चॉकलेट का क्वालिटी अच्छा लगा तो क्या होगा, सपोज यू लाइक दैट चॉकलेट, so next time whenever you will go to market you will definitely buy 1 or 2 pieces, at least you will try to buy that chocolate, ठीक है, that product। so that is कि क्वालिटी अगर किसी का अच्छा हो, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा कि मुझे मेरा मार्केट में मुझे फीडबैक अच्छा है तो आई हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, बट कीप इन माइंड दैट वो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी सेम होना चाहिए प्रीवियस से। सो आई विल कंट्रोल द क्वालिटी कि मुझे सब प्रोडक्ट का क्वालिटी, सब प्रोडक्ट का टेस्ट, सब प्रोडक्ट का शेप एंड साइज इक्वल रखना चाहिए। सो ऑब्वियसली आई हैव टू, दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। नाउ एफिशिएंसी, मोर प्रोडक्ट, अगर यू नो दैट ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसका एफिशिएंसी घटेगा, दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अगर तुम खाने 2 आदमी के लिए खाना पकाओगे और वही खाना अगर तुम 40 आदमी के लिए पकाओगे तो देखोगे टेस्ट का थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, सपोज मार्केट में अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ सामान उसको ये सप्लाई करना है तो कंपनी विल मेंटेन द सब में सेम क्वालिटी होगा कि नहीं, सबका क्वालिटी कंट्रोल होगा कि नहीं, ठीक ठाक सब में डिलीवरी होगा कि नहीं। सपोज पहला लॉट का सामान डिलीवर हो रहा है, तुम Amazon फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, पहला सामान 3-4 सामान है, ठीक है, पहला सामान डिलीवर हो रहा है 2 दिन बाद और दूसरा सामान डिलीवर दिखा रहा है 1 महीना बाद। सो दैट इज नॉट क्वालिटी कंट्रोल कि पहला सामान अगर 2 दिन बाद है, दूसरा सामान एटलीस्ट 2 से 3 दिन के डिफरेंस में डिलीवर होगा, दैट इज एफिशिएंसी। So through efficiency you have to control the quality, so these all under equality। देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कंट्रोल होता है कि सामान का प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज जो है सेम रहे, so these all under equality। so instead of this simple term use कर दो, that is equality। Now reliability, suppose तुम एक साउंड करो, दैट इज नटराज पेंसिल, ठीक है, अभी भी मार्केट में है, ये अप्सरा पेंसिल है, अभी भी मार्केट में है। तो अगर तुम देखोगे तुम्हारे अगर घर में कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन हो, ठीक है, लाइक मैं जब यूज करता था, मैं अपने जब बीटेक या एमटेक में यूज करता था या स्कूल में यूज करता था, कैमलिन, अप्सरा, नटराज, ठीक है, अभी भी जब वो पेंसिल मार्केट में अवेलेबल है, देखता हूं कि उसका राइटिंग क्वालिटी या उसका जो लेड क्वालिटी दिया होता है, ग्राफाइट का जो तुम्हारा ये लिखने का ये दिया रहता है, वो उसका क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो रिलायबल। व्हेनेवर आई विल बाय द पेंसिल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मेरा ऑब्वियसली मेरा पहले चॉइस होगा नटराज, अप्सरा, कैमलिन, दैट इज रिलायबल, क्योंकि तुम लोग एक टाइम में हम लोग एक टाइम में उसको यूज कर चुके हैं।
अगर मुझे पता है कि उसका जो क्वालिटी है अभी भी सेम क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, सो आई विल डेफिनेटली बाय दिस प्रोडक्ट। सेम थिंग हैपेंस टू यू, तुम अगर ऑटोमोबाइल देख लो, तो तुम्हारे प्रीवियस जनरेशन, दैट इज मम्मी पापा के जनरेशन के टाइम, तो वहां पे एक प्रोडक्ट था हीरो होंडा, ठीक है, ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, या ये तुम लोग स्कूलिंग का बात होगा। हीरो होंडा प्रोडक्ट था, तो हीरो होंडा प्रोडक्ट ऑब्वियसली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन, वेल नोन प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है। सबका पहला चॉइस रहता है कि मैं हीरो होंडा का बाइक खरीदूंगा, ठीक है। लड़के का शादी हो रहा तो भाई हीरो होंडा का बाइक चाहिए, दैट इज हीरो होंडा। सो नाउ हीरो होंडा जब स्प्लिट हुआ, दैट इज हीरो एक तरफ होंडा एक तरफ, ठीक है, बट द कंपनी विल नॉट लूज द रिलायबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। कि तुम्हें पता है हीरो होंडा अलग हुआ तो क्या हुआ, हीरो में अगर मुझे डिजाइन में जाना है तो हीरो जाऊंगा, अगर इंजन में जाना है तो होंडा जाऊंगा, ठीक है। सो रिलायबिलिटी, तुम दूसरा कुछ बाइक खरीदने से पहले तुम्हारे दिमाग में एक बार स्ट्रक करेगा कि ये मॉडल हीरो या होंडा में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि द इंजन was one of the best engine provided by the Honda, ठीक है। So that is the reliability। हालांकि बहुत सारा कंपनी और भी है जो सपोज जो देखा जाएगा कि होंडा से बेटर तुम्हारा इंजन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, इंजन प्रोवाइड कर रहा है, बट नेम रिलायबिलिटी, एक रिलायबिलिटी बन चुका है, ठीक है। होंडा का नाम सुनते ही तुम्हें एश्योर होता है कि मुझे इंजन को देख के कोई टेंशन नहीं लेना है, दैट इज रिलायबिलिटी। सो होंडा शुड कंट्रोल देयर क्वालिटी, कि वो सेम अमाउंट का या सेम सर्विस प्रोवाइड करे टू मेंटेन द रिलायबिलिटी, कि पब्लिक उसका नाम पे ही वो सामान खरीदे। सो दिस इज ऑल्सो अंडर इक्वालिटी। रिलायबिलिटी भी तुम्हें मेंटेन करेगा जब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इक्वालिटी मेंटेन होगा, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशन, सपोज जैसे अभी देख लो, ठीक है, अभी देख लो, पहले क्या होता था, एमआई मोबाइल फोन निकालता था, ठीक है, ऑब्वियसली एमआई मोबाइल फोन निकालता था। अभी देखो मार्केट में क्या हो रहा है, एमआई टीवी निकाल रहा है, ठीक है। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, के पहले वो लोग मोबाइल के मार्केट में था, तो मोबाइल का मार्केट में देखा सेल अच्छा हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सो why don't we modify, why not to implement or to enter in the other field, that is television field, ठीक है। रेडमी लैपटॉप निकाल रहा है, ठीक है। सो दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो क्वालिटी हैज टू बी कंट्रोल्ड, के हाँ मोबाइल का फीचर अलग है, मोबाइल का बजट अलग है, क्वालिटी का बजट है, तुम्हारा लैपटॉप का बजट अलग है, टीवी का बजट अलग है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मॉडिफिकेशन चाहिए। सो मॉडिफिकेशन के चलते इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कि हाँ लैपटॉप, ऑब्वियसली लैपटॉप बनाओगे तो तुम्हारा बजट मोबाइल फोन प्रोडक्शन का बजट नहीं रहेगा, ठीक है। या टेलीविजन बनाओगे तो ऑब्वियसली लैपटॉप के बजट से बहुत ही कम रहेगा, बट मोबाइल के बजट से हाई रहेगा। सो दैट इज द कंट्रोल, दैट्स व्हाई क्वालिटी हैज टू बी कंट्रोल। कि तुम एकदम हाई फाई लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन दे दो और कीमत रख दो 20,000, कंपनी विल फेस लॉसेस। सो दैट शुड बी कंट्रोल्ड। नाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, that is the main factor, whatever you are producing that is definitely for the customer, ठीक है। तुम एक सामान प्रोड्यूस कर रहे हो किसके लिए, कस्टमर के लिए। अगर वो सामान तुम नहीं बेचोगे मार्केट में, so obviously you will not get profit, or if you will not get profit, obviously industry will not run very will not run smoothly. So whatever you are going to produce, whatever you are going to modify, whatever you are going to maintain the equality is only for the customer. So customer satisfaction is very much important thing or vital thing. तो क्वालिटी को कंट्रोल क्यों किया जाता है, दैट मीन्स कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट इज द मार्केट डिमांड। तुम अभी अगर इस टाइम पे अगर एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट बनाओगे, ठीक है, लॉन्च करोगे कोई एक कंपनी, सपोज ओनिडा, ठीक है, ओनिडा ब्लैक एंड व्हाइट सेट टीवी सेट बना के मार्केट में सेल कर रहा है। सो अगर इस टाइम में
अगर इस टाइम में ओनिडा तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट बना के मार्केट में दे रहा है, तो ऑब्वियसली consistency in market for particular product, that is consistency is under equality or reliability, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, if more than one or two products, ठीक है, will maintain the same quality, अगर तुम्हारा टेंडेंसी है कि मोर देन मैं पहला प्रोडक्ट के तरह ही मैं सेकंड प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली दिस विल अंडर द इक्वालिटी, ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज वैलिड, दैट इज कंसिस्टेंसी इन मार्केट, ठीक है, कि कंसिस्टेंट होना चाहिए कि पहला हम 100 सामान बना दिए, फिर दूसरे में 20 दे रहे हैं, मार्केट डिमांड 100 से ऊपर आ गया, फिर नेक्स्ट स्लॉट में मैं 500 सामान भेज रहा हूँ, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, सो दैट इज अंडर ऑल अंडर इक्वालिटी, कि मैं पहले में 100 भेज रहा हूँ सामान, सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का, सो दूसरे में भी 100 भेजूंगा, सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड, सो दिस ऑल अंडर इक्वालिटी, ठीक है, सो मेनली इक्वालिटी, मॉडिफिकेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ इक्वालिटी के अंदर तुम्हारा जितना भी पॉइंट ऐड करना चाहते हो करो, लेकिन इक्वालिटी ऑलवेज मेंटेन इन सच अ वे दैट व्हेनेवर योर टू प्रोडक्ट्स हैज टू मेंटेन द सेम क्वालिटी, ओके। रिलायबिलिटी में भी सेम थिंग, ऑब्वियसली तुम एक सामान खरीद के रिलायबिलिटी कब, तुम अगर रिलायबल हो गए, ठीक है, देन आई विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कंपनी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम सेटिस्फाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, ऑब्वियसली कंपनी विल क्रिएट अ गुड विल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इफ कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाई, कंपनी विल नेवर रन और विल नेवर earn some profit, okay, so customer satisfaction, so for this 4 reason, ठीक है, रिलायबिलिटी इंडिविजुअल पॉइंट में भी डाल सकते हो, रिलायबिलिटी अंडर तुम इक्वालिटी में डाल सकते हो, ठीक है, ओके, सो फॉर दिस पॉइंट क्वालिटी हैज टू बी कंट्रोल्ड। So now proper definition of quality control. That is quality control. So क्वालिटी कंट्रोल हम टेक्निकल टर्म में क्या लिख सकते हैं? So इसको लिख सकते हैं, दिस इज द मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज द मैनेजमेंट सिस्टम फॉर initiating and coordinating. नेक्स्ट इज इसका अंडर है क्वालिटी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एंड इसका मेन मोटो है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। So this is the quality control, that is this is nothing but a management system। मैं अगर तुम्हारा नेक्स्ट बैच, तुम्हारा जूनियर बैच को भी अगर सेम क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं लूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा
कि जो क्वालिटी तुम लोगों को सप्लाई किया, ठीक है, उससे बेटर या इक्विवेलेंट टू दैट क्वालिटी ऑफ लेक्चर आई हैव टू सप्लाई। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरा कहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन जरूरत है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल मॉडिफाई, दैट इज इंप्रूवमेंट। क्वालिटी डेवलपमेंट, सो मुझे पहले एक क्वालिटी डेवलपमेंट करना है, ताकि मुझे एक प्रॉपर्टीज क्रिएट करना है कि तुम्हें पता चले कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्लास है, तो ऑब्वियसली दिस अमाउंट ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, आई हैव टू मेंटेन द सेम क्वालिटी ओवरऑल योर एंटायर सेमिस्टर। कि आज मैं क्लास में 3 घंटा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे में क्लास ही नहीं, क्लास में 1 घंटा पढ़ रहा हूँ विदाउट इंफॉर्मेशन, मैं सिर्फ गप्पे मार रहा हूँ। दैट इज मेंटेनेंस, आई हैव टू मेंटेन द सेम क्वालिटी। एंड नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, एज आई टोल्ड कि अगर कोई इंप्रूव चाहिए, इंप्रूवमेंट जरूरत है, तो आई हैव टू इंप्रूव द प्रोडक्ट। तो मेन motto or main aim of quality control is economical production. Obviously, as I told, end of the day तुम्हें एक कंपनी क्या चाहता है, मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, और मुझे मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल विल always dependent on economical production and customer satisfaction. So that's why quality, that is the quality control, and that is aim of quality control. That is the aim. End of the day, how much I will profit, how much profit kitna hua hai, and how much customer has been satisfied by my product. Okay, next is objectives. Objectives of quality control. Okay, before starting the objectives of quality control, ठीक है, मैं काम करता हूँ, 4 मिनट के बाद मीटिंग खत्म, ये क्लास का लिंक खत्म हो जाए, तो यू हैव टू ज्वाइन द विद द सेम लिंक। ठीक है, तो अभी सिंस टाइम थोड़ा 4 मिनट है, तो मैं ये 4 मिनट थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन कर लेता हूँ। दैट इज, एक मिनट रुको, that is depend question which I have given to all of you, that is assignment question. ठीक है, so assignment question क्या दिया हुआ था, A B C D, that is standard time and normal time का जो प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, सो ऑब्वियसली तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हो, अगर नहीं भी किए हो तो देखो यहाँ पे दिया गया था, A का 0.22 मिनट है, 0.65 मिनट है, 0.47 मिनट है, 0.75 मिनट है। एफिशिएंसी और इसका 100%, 80%, 100% एंड 100%। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी दिया गया था, डी विल रिपीट्स एवरी, कितना मिनट दिया गया था, रुको, So 15 cycle. 15 साइकिल ना, एवरी 15 साइकिल, एवरी 15 साइकिल। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन निकाल, that is D is irregular, performed once every 15 cycle. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया था, मशीन एलिमेंट दे दिया था एक, सो मशीन एलिमेंट एक्स वाई, सॉरी एक्स एम एंड एन, डी का कंसीडर नहीं किया था, दैट इज 1.32 मिनट, 1.56 मिनट एंड 2.3 मिनट। ठीक है, और डी आइडियल, मशीन इसमें नहीं है, एंड allowance for machine
20%. And allowance for element is 15%. 15% for this ABCD, and for machine 20%. So now, how it will be calculated? So as I told, normal time, that is Tn equal to, just यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो you have to take the maximum. तो क्या होगा? Tn is maximum 0.22 into 1 and 1.32. सिमिलरली इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, सेम थिंग, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो और इसमें से इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, एंड डी बता दिया गया डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 0.75 into 1 डिवाइडेड बाय 15. तो ये टोटल जो समेशन होगा दैट इज द टोटल टाइम. नाउ स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? 1 by अलाउंस फैक्टर. ठीक है, सो 1 by अलाउंस फैक्टर क्या है? Sorry, 1 by allowance factor बोला, that is the total normal time multiply with 1 plus allowance factor. So now standard time क्या होगा? Okay, meeting will end. Okay, I am waiting for 2 minutes for the other participant. Okay. हाँ बोलो. Okay, now what will be the standard time? So just a minute, I have to share this screen. Good. So now that is the normal time. क्या अब ये टोटल जाएगा, ठीक है. इसका नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑफ तुम्हारा 0.65 इंटू 0.8. हाँ बोलो. वॉइस इज okay. So now you have to calculate the maximum time. ठीक है, मैक्सिमम टाइम इन बिटवीन दिस टू. नाउ स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? दैट इज मशीन के लिए है मशीन के लिए है तुम्हारा 50. Just a minute. So for
एलिमेंट्स दैट इज 15%. सो स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 0.22 टाइम कंज्यूम प्रोडक्ट 1 प्लस अलाउंस फैक्टर 15%, दैट इज 0.15. और इसी के साथ मशीन एलिमेंट भी है, दैट इज 1.32. सो 1.32 1 प्लस मशीन का तुम्हारा अलाउंस फैक्टर क्या है? 0.2. सो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करोगे एंड इंडिविजुअली हर एक का कैलकुलेट करोगे एंड देन टोटल समेशन, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, देखो कितना आ रहा है. कैलकुलेट करके देख लो. ठीक है, सो ऑलमोस्ट सबका कैलकुलेशन सेम आएगा. ओके, सो नाउ मूव टू द टॉपिक. सर हाँ बोलो. सर सर हाँ बोलो. टीएन में बस सर टीएन वाला जो मतलब नॉर्मल टाइम है हाँ उसमें सर बस दो ही चीज को कंसिडर करेंगे, ए और बी वाला बस, नहीं, हर एक चीज सी को नहीं. सी को करोगे. मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये उतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये तुम लोग कैलकुलेशन कर. सी का क्या होगा? इन दोनों को Yes, sir. मल्टीप्लाई करो और इसका इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है. डी को डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसा Yes, sir. सॉल्व करोगे तुम. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So now next is objective, that is objectives of quality control. ठीक है, objectives of quality control. Now objectives of quality control. ठीक है, एंड बिफोर दैट और एक मैं अनाउंस करना चाहता हूँ. प्रीवियस तुम्हारा जो इंटरनल हुआ था, ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक मेरा एक ये हो गया था, गलती से ऑप्शन रॉन्ग सिलेक्ट हो गया था. ठीक है, ड्यूरिंग द जब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं तो राइट ऑप्शन क्लिक करने के जगह गलती से रॉन्ग ऑप्शन क्लिक हो गया था. दैट्स व्हाई ऑल स्टूडेंट्स विल गेट 2 मार्क्स एज अ ग्रेस मार्क्स. तुम लोगों का जो मिला है पॉइंट्स, ठीक है, उसके साथ 2 मार्क्स ऐड किया जाएगा सिंस द क्वेश्चन द ऑप्शन विल बी wrongly selected. The option was wrongly selected. Okay, मैं बता रहा हूँ कौन सा. That is flow process, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, यहाँ पे 3 दिया गया है. दैट इज फ्लो प्रोसेस. तुम लोगों का 2 टाइप का होगा. ठीक है, सो दैट इज वहां पे रॉन्ग ऑप्शन क्लिक हुआ था. सो दैट्स व्हाई यू विल गेट 2 मार्क्स एज ए ग्रेस मार्क. ठीक है, सो नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल. सो ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं क्वालिटी कंट्रोल क्यों करूंगा? मेरा मेन मोटो क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन एम क्या है? दैट इज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स which are dependable, to provide products which are dependable, satisfactory and economical. That is the main objective of quality control. कि कंपनी क्वालिटी कंट्रोल किस लिए करेगा? डिपेंडेबल प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल करेगा. कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंपनी विल कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिकल. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हाई फाई क्वालिटी का तुम एक सामान खरीद रहे हो, ठीक है, और उसका कीमत एकदम लो गया, ठीक है, लो रखा है कंपनी. सो दैट विल द इकोनॉमिकल. So these are the 3 objectives, that is dependable, satisfactory and economical. So if objective of quality control, 3 basic things. First one is dependable,
second one is satisfactory, and third one is economical. So three things, basic objectives of quality control. ठीक है. नेक्स्ट इज नीड फॉर क्वालिटी. व्हाई, मुझे क्वालिटी का इतना क्यों पड़ा है. ठीक है, मैं क्वालिटी के पीछे इतना क्यों जा रहा हूं. दैट इज क्वालिटी का जो है नीड फॉर क्वालिटी, और आई कैन से राइट नीड फॉर क्वालिटी. मुझे इतना क्यों पड़ा. सो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. मैं अगर क्वालिटी को कंट्रोल में नहीं करूंगा, मेरा अगर प्रोडक्ट का कोई क्वालिटी मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारा 6 सेमेस्टर में ट्रिपल ई का ही स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट डिप्लोमा जो करने आ रहा है वही तुम्हारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में भर्ती होगा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट. दैट क्वालिटी मस्ट बी देयर टू टेक एडमिशन इन पॉलिटेक्निक कॉलेज. अगर मैं मेंशन ही नहीं करूंगा, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दूं, हाँ भाई ले लो एडमिशन, ठीक है, कोई क्वालिटी नहीं, क्राइटेरिया नहीं दिया हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट विल नॉट गोइंग टू एडमिट इन माय कॉलेज. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंटेन द क्वालिटी. दैट इज मैं क्वालिटी में एक मेजर कर दूंगा कि मुझे जो है डिप्लोमा के लिए साइंस बैकग्राउंड में जो आना चाहता है, दैट इज 10 तक तुम लोगों का साइंस कॉमर्स आर्ट्स डिवाइड नहीं होता है. सो डिप्लोमा के लिए साइंस बैकग्राउंड में जो आना चाहता है, ठीक है, उसका और इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो गेन करना चाहता है, उसके लिए मैं डिप्लोमा कॉलेज खोला. तो स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एज वेल एज दे मस्ट विलिंग टू कंटिन्यू इन साइंस बैकग्राउंड. ठीक है, नेक्स्ट इज दे विल गेट द diploma certificate after completion, or they will be the diploma engineer after completion the course. So that is the quality. So I have to maintain, I need that quality for increasing productivity. Suppose मेरे पास अगर students maximum भर्ती हुआ जो study student है, जो पढ़ते हैं ज्यादा, obviously they will increase the quality of the product very high, so that next time, ठीक है, तुम लोग पास आउट हो जाने के बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट बैच बोलेगा कि अरे भाई वहां का तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पास आउट है बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, अच्छा इंजीनियर बना, तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों के कॉलेज को ही चूज करूंगा. दैट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. क्वालिटी अगर तुम्हारा अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग होगा. सो इसको उल्टा कर लो, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, यू रेज द लेवल ऑफ द क्वालिटी. नेक्स्ट इज reduced cost of repair. That is repairing cost, इसको reduce करना पड़ेगा क्वालिटी के लिए. ठीक है, क्योंकि रिपेयरिंग में ही अगर तुम्हारा ज्यादा पैसा चला जाएगा तो ऑब्वियसली विल नॉट बाय द प्रोडक्ट. ठीक है, तो तुम देखोगे जो प्रोडक्ट में रिपेयरिंग कॉस्ट कम है, दैट मींस रिपेयरिंग कॉस्ट किस लिए कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट खराब होने का चांस बहुत ही कम होगा. So that's why the quality will be needed. Reduce the cost of repairs. Next, increasing loyal customer base. ठीक है, मेरा एक अगर सपोज कंपनी ऑलवेज टारगेट टू गेट द लॉयल कस्टमर. ये नहीं कि मैं होंडा का स्कूटी चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं मार्केट में बोल के रखा हूँ कि मैं टीवीएस का स्कूटी अच्छा है, ठीक है, टीवीएस का बाइक अच्छा है, ठीक है, टीवीएस का सर्विस अच्छा है, बट मैं यूज कर रहा हूँ होंडा कंपनी का. सो दैट इज
नॉट लॉयलिटी। ठीक है, लॉयलिटी मीन्स अगर तुम किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली यू विल सजेस्ट टू योर फ्रेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट बाय गिविंग द जेन्युइन फीडबैक, दैट इज लॉयल। ठीक है, अगर तुम लोग लॉयल, सपोज यू आर गोइंग टू बाय सम प्रोडक्ट बट यू नीड एन एडवाइस, सो अगर मुझे तुम एडवाइस के पूछोगे सर मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा? सो नाउ आई एम यूजिंग सपोज एचपी लैपटॉप, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि एचपी का लैपटॉप खराब है, हाँ, उसको एकदम लेना ही मत, एंड बाय द वे और मैं क्या कर रहा हूँ, इधर खुद एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, बट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि एचपी का लैपटॉप मत लो, ठीक है, तुम एक काम करो, ये कंपनी का लैपटॉप लो, उसका स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट इज नॉट लॉयलिटी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एचपी का सजेस्ट करूंगा, ठीक है, उसका क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, तो ऑब्वियसली एचपी हैज टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, कि वो मुझे वो क्वालिटी वाला चीज प्रोडक्ट मुझे दिया होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कन्वे कर रहा हूँ वो मैसेज कि एचपी ले लो, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल भी रहता है और टू मच तुम्हारा कॉस्ट भी नहीं रहता है। सो एचपी ऑब्वियसली मुझे वो प्रोडक्ट सप्लाई किया है जिसके थ्रू मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, जिसके चलते मैं सेटिस्फाई हूँ, एंड आई एम सजेस्टिंग दैट प्रोडक्ट टू यू, दैट इज लॉयलिटी, कि मैं एचपी का ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, सो दैट आई विल सजेस्ट द एचपी प्रोडक्ट, एंड इवन आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेनेवर आई विल बाय द नेक्स्ट laptop again, then I will also prefer the HP first, so that is the loyalty. So company always need the quality, वो कंपनी क्या करता है, क्वालिटी को बरकरार रखता है ताकि उसका जो लॉयल कस्टमर है वो इंक्रीज हो, ठीक है, सो लॉयल कस्टमर इंक्रीज, लॉयल कस्टमर बेस, क्योंकि आगे चलते कंपनी का जो रेपुटेशन मार्केट में खड़ा करेगा, ये लॉयल कस्टमर ही खड़ा करेगा, ठीक है, कंपनी खुद नहीं आके बोलेगा कि मेरा कंपनी बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा कंपनी इतना सालों से चल रहा है, मेरा कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी क्या करेगा, लॉयल कस्टमर बेस। जैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद थोड़ी जाके बोलता है कि मेरा यहाँ पे एडमिशन ले लो, यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ कैंपसिंग इतना अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ पे तुम ये कर दो, एडमिशन ले लो, यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मैं पूरा गारंटी देता हूँ। ऐसा कंपनी बहुत ही देखोगे, बहुत ही कम कंपनी करता है, या वेरी initial stage of the promotion of the college, the institute will follow this, but end of the day, ठीक है, loyal customer कौन है, you the student, after passing out from your institute, whenever you will suggest to any other relative or friends of your, so तुम उसको अगर सजेस्ट करोगे कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इज गुड कॉलेज, ठीक है, वहां पे पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, या डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं बोलेगा तुमको यही पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना है, नो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर। सो यू हैव टू, एक मिनट रुको, सो यू हैव टू पब्लिसाइज, ठीक है, वो जो एड है वो तुम खुद हो, तुम खुद बोल रहे हो ये कॉलेज में एडमिशन लो अच्छा होता है, सो दैट इज द लॉयल कस्टमर। ओके, सो दैट इज नीड फॉर क्वालिटी। ओके, अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लॉयल कस्टमर का बेस अच्छा होगा। नेक्स्ट इज बेटर प्रॉफिट। ऑब्वियसली कंपनी देखेगा क्वालिटी को मेंटेन करके मेरा प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, अगर देखेगा कंपनी का क्वालिटी इंक्रीज करके मेरा लॉस हो रहा है, so obviously company will not go for the changing. So today that much for today, ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था सुबह सुबह, I was trying from 7 AM, ठीक है, ये लिंक कनेक्ट हो जाए, लिंक ओपन हो जाए, जस्ट अ मिनट।